Assalamu alaikum everyone. My name is Isma Naseem and I'm from second year pre-medical. First of all, I want to welcome all of you to my podcast, the podcast of IMCG F62. Today, we are going to talk about one of the effects of climate change, and that is smoke. But before starting my podcast, I want to welcome a very special guest of mine, Rahab Naveed, and she is from second year pre-medical. Assalamu alaikum Rahab. वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। राहब, जैसे कि हमने आपको पता है कि हम लोग आज स्मोक पर बात करने जा रहे हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक अफेक्ट है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि क्लाइमेट चेंज आखिर है क्या? Climate change is basically the overall rise in the temperature of our globe and due to the greenhouse gases and the greenhouse effect. And climate change, it poses very adverse effects on us and our environment. The melting of glaciers, the rise in sea levels, and one of the effects that we pose in our daily life, we can see it, for example, smoke. Okay, so what basically is smoke? Smoke है क्या? Basically, smoke is a mixture of fog and dust particles, smoke particles in the air. It causes lack of visibility, lack of clearness in the sky. तो जैसे कि आपने हमें बताया कि स्मोक इज़ अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोग, तो आप हमें बता सकती हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की कौन सी सिटीज़ हैं जो कि स्मोक की वजह से मोस्ट अफेक्टेड हैं? Basically, smoke affects the whole of Pakistan. But some cities, for example, Lahore, Faisalabad, Gujranwala, they are the most affected by smoke. तो जिस तरह आपने हमें बताया कि सिटीज़ फॉर एग्जांपल लाहौर है, हमारे पास गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, ये मोस्ट अफेक्टेड सिटीज़ हैं स्मोक की वजह से। तो आप हमें बता सकती हैं कि पाकिस्तान में और भी सिटीज़ हैं, तो यही सिटीज़ क्यों अफेक्टेड हैं सबसे ज़्यादा? बेसिकली एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा दीज आर द प्लेन एरियाज विच इज़ वाई एग्रीकल्चर ब्लूम्स ओवर देयर एंड द रेजिड्यूज दैट आर लेफ्ट after the crops are sown and they are reaped, these residues are burnt, which causes air pollution and the smoke to rise in the air and it contributes to the smoke. तो आप अब हमें बताएंगी कि जैसे आपने हमें स्मोक के बारे में बताया कि कौन सी सिटीज़ अफेक्टेड हैं और क्यों हैं, तो स्मोक के कॉजेज़ क्या हैं? स्मोक होती क्यों हैं? Smoke, it is basically caused by the dust in the air pollution. The exhaust engines which release the smoke into the air, the smoke from chimneys of factories, houses, smokes from exhausts of cars, vehicles on the roads, deforestation, because our trees, our air purifiers, and when we cut down the trees, there is nothing, our trees, they are not able to purify the air anymore, which causes air pollution, and also our crop burning, which is one of the major factors. Okay. तो जिस तरह आपने हमें बताया कि कौन से कॉजेज़ हैं जो कि स्मोक जिनकी वजह से हो रही है, तो हमारी हिस्ट्री में से इस तरह की कोई एक एग्जांपल है जहाँ पे स्मोक का इशू पहले हो चुका हो, ठीक है, और फिर उसकी गवर्नमेंट ने किसी भी कंट्री में क्या स्टांस किया, क्या स्टेप लिया उसको मिटिगेट करने के लिए, क्लाइमेट चेंज के इस इफेक्ट को, स्मोक को कम करने के लिए? जी, हमने एग्जांपल इंग्लैंड में देखी है 1952 में, जहाँ पे लंदन स्मॉग हुई थी, जो कि इट लास्टेड फॉर 1 वीक and it affected 4,000 to 10,000 lives at that time. It was a deadly smog, and the government, they introduced the Clean Air Act, and smoke producing factories were banned in urban areas, and they launched their drive. They controlled these effects of smoke, and now we don't see smoke over there anymore. ओके, तो जिस तरह आपने बताया कि लंदन स्मोक के बारे में कि 4,000 से लेकर 10,000 लोगों को इसने अफेक्ट किया, तो इसके हमारे इंसानी सेहत पर क्या असर आते हैं? आप हमें बताना चाहेंगी कि कौन सी डिजीज़ ये कॉज कर सकता है जो कि डेडली हो सकती हैं हमारे लिए? Generally speaking, smoke causes irritation in our eyes, our dry throat, burning, but in terms of diseases, it can cause asthma, eye diseases, respiratory tract infections such as chronic bronchitis. Okay. And it can ultimately lead to death. It can be fatal. So what do you think? स्मोक सबसे ज़्यादा एडल्ट्स को अफेक्ट करे या फिर चिल्ड्रन को? Of course, our children are the most affected by smoke because their immune system is not that well developed, Okay. which causes them not to cope that easily and well to the effects of climate change and smoke. ओके, थैंक यू राब। जिस तरह आपने हमें सब बताया कि हमारी हिस्ट्री से आपने स्पेशली हमें एग्जांपल दी, उसके बाद हमने इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ा। अब मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं हमारे नाज़रीन को कि इस तरह के कौन सा एक इमीडिएट स्टेप है, ठीक है, जो हम फ़ौरन ले सकते हैं स्मोक के इफ़ेक्ट्स को कम करने के लिए। जैसे कि हमने लाहौर में देखा भी है, आर्टिफिशियल रेनफॉल एक ऐसा स्टेप है जो हम ले सकते हैं और इसके 2 तजर्बात कामयाब भी हो चुके हैं।
और आर्टिफिशियल रेनफॉल जब हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने एटमॉस्फेयर में, तो बग़ैर नेचुरल रेन के हमारी एयर क्लीन हो जाती है और स्मोक से प्योरीफाई हो जाती है, लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट हल नहीं है। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि इसका परमानेंट हल क्या हो सकता है, और इसके साथ साथ कि गवर्नमेंट ने आज तक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स लिए हैं इसको क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट, जो हम बात कर रहे हैं स्मोक के बारे में, इसको मिटिगेट करने के लिए, इसके इफ़ेक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए? हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकदाम लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे कि ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन जो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई है, जब हमारे पास व्हीकल्स कम होंगी रोड्स पे, उसकी वजह से हमारे पास स्मोक के असरात भी कम होंगे, बिकॉज देयर विल बी लेस एयर पोल्यूशन। ओके, और इसी तरह से जिस तरह आपने बात की क्रॉप के बारे में, क्रॉप बर्निंग, तो उसके लिए क्या स्टेप लिया गया? क्रॉप रेजिड्यूज़ की बर्निंग बैन हो चुकी है, उस पर फ़ाइन लग चुके हैं। इस तरह हमारे पास एयर फिल्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं कि जो कि चिमनीज़ पे लगाए जा सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास स्मोक के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। थैंक यू राहब फॉर योर टाइम। सो दिस वाज ऑल। हमारी पॉडकास्ट आज यहाँ पर ही ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।